بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ زندگی اس قدر میرے ساتھ بھیانک کھیل کھیلے گی مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد میری گردن میں شدید چوٹ آئی تھی۔ میرا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس قدر خوف کی کیفیت مجھ پر سوار ہوئی کہ میں اپنی آواز سے ہی محروم ہو گئی تھی۔ شاید یہ میری ماں کی دعائیں ہی تھیں، لیکن اس حادثے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ایک چیز سے محروم کر دیا تھا، میری آواز جو میری پہچان تھی، جسے سننے کے لیے لوگ خود دور سے چلے آتے تھے۔ ہمیشہ کے لیے میری وہ آواز چھین لی گئی تھی۔ یہ سب کرنے والا کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرے دشمنوں کی کمی نہیں تھی، اتنا مجھے معلوم تھا۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی بے قراری سے تڑپ رہی تھی۔ امی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں میری بچی، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن کوئی اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کوئی اس کی ناشکری کر کے گنہگار کہلاتا ہے۔ اس لیے تم نے بھی ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھے صبر و شکر کا سبق پڑھاتی آئی تھی، اور میں بے بسی کی حالت میں چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے آنسو ٹپک ٹپک کر تکیے کو گیلا کر رہے تھے۔ عنقریب ڈاکٹر مجھے چھٹی دینے والے تھی۔ میں اس ہسپتال میں اپنی ایک چیز ہمیشہ کے لیے کھو کر جا رہی تھی، وہ تھی میری آواز۔ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے گھر میں رہتے تھے۔ گو کہ مامی مجھ سے اور امی سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جب اماں بیوہ ہو کر ماموں اور نانی کے پاس آئیں تو مامی نے ان سے نفرت کا رشتہ قائم کر لیا تھا۔ وہ خوب اماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی اور کہتی کہ تم سارے گھر کا کام بھی کرو اور میری خدمت بھی کرو، لیکن یہ بات نانی کو خوب ناگوار گزرتی اور انہوں نے اپنے ایک دوسرے گھر میں مجھے اور اماں کو شفٹ کر دیا تھا۔ یہ بات مامی کے دل پر تیر کی طرح جا کر لگی تھی اور انہوں نے دشمنی میں ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ تو اماں کو بدنام کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک بیوہ عورت تھی، لیکن ان کی یہ نفرت پانی کی طرح بہہ گئی جب جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر اماں کے نام پر نکلا، کیونکہ نانی نے پہلے ہی امی کے نام پر یہ گھر کر دیا تھا، جو مامی کا خیال تھا کہ یہ گھر میرے شوہر کے نام پر ہوگا۔ لیکن جب اس کے کاغذات ملے تو اس میں صاف لکھا تھا کہ یہ گھر نازیہ علی کے نام پر ہے۔ نازیہ علی میری امی کا نام تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ واپس میکے آ گئی تھی، کیونکہ سسرال والوں نے انہیں زبردستی اس گھر سے نکال دیا تھا جو میرے باپ کا تھا۔ نہ ہی تو مجھے اور میری ماں کو کوئی حصہ دیا گیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے مروتاً ہمیں یہ کہا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے تو کیا ہوا، ابھی بھی تمہارا اس گھر پر حق ہے۔ یوں ہم در بدر ٹھوکر کھاتے ہوئے نانی کے پاس آ گئے۔ نانی نے امی کو سینے سے لگا لیا کیونکہ امی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماموں 3 بھائی تھے، لیکن میرے 2 ماموں شہر میں رہتے تھے، جبکہ ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ماموں کے پاس 2 گھر تھے جس میں امی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن نانی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے امی کو بتا دیا تھا کہ نازیہ یہ گھر تمہارے نام پر ہے اور اس کے کاغذات بشیر کے پاس رکھے ہیں۔ بشیر میرے ماموں تھے۔ امی اور میں یہ سن کر سجدے میں گر گئے کہ خدا نے ہمیں ایک چھت عطا کر دی، ورنہ ہم دونوں ماں بیٹی زمانے کی در بدر کہاں ٹھوکرے کھاتے۔ کیونکہ جب ماموں اور مامی کو پتا چلا کہ یہ گھر امی کے نام پر ہے تو وہ ہمارے دشمن بن گئے۔ مامی کا بس نہیں چلتا کہ زبردستی امی سے انگوٹھا لگوا لیں اور ہمیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں۔ اب ہم دونوں اس 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں سر چھپائے بیٹھے تھے۔ امی سلائی کر لیتی تھی اور ہمارے گھر کا گزارا ہو جاتا، جبکہ مجھے شروع سے ہی قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق تھا، کیونکہ میری آواز بہت اچھی تھی۔ جب بچپن میں اسکول میں پوئم وغیرہ سناتی یا پھر نعت پڑھتی تھی تو سارے ٹیچرز کہتی کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے کہ تم بہت بڑی گائیکا بنو گی۔ لیکن مجھے گانے سے نفرت تھی۔ جب میں نے یہ بات امی سے کہی تو امی کہنے لگی میری بیٹی گائیکا نہیں بلکہ ایک قاریہ بنے گی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی امی قاریہ کیا ہوتا ہے؟ امی کہنے لگی بیٹا جو قرآن پاک کی دلکش انداز میں تلاوت کرتا ہے اسے قاری کہتی ہیں۔ بچپن سے ہی میں نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی کہ میں نے امی کی خواہش پوری کرنی ہے، اس لیے میں دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔
जब मैंने महज 8 बरस की उम्र में नाज़रा कुरान पाक खत्म किया तो उनकी आंखों में हैरत थी। सब मेरे ज़हीन तरीन दिमाग की तारीफें कर रहे थे। फिर मैंने हिफ्स करना शुरू किया और अम्मी ने मेरा दाखिला एक बहुत बड़े मदरसे में करवा दिया। मैं पढ़ने में शुरू से ही ज़हीन थी। अपने इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी, जबकि मामू की दोनों बेटियां एक बहुत बड़े स्कूल में प्राइवेट तालीम हासिल कर रही थी, जिनकी फीसें भी हजारों में थी, जबकि मेरी कोई फीस नहीं थी क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। वहाँ पर और भी लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन जब मैं उस मदरसे में पढ़ने लगी तो सारी लड़कियां मुझे सहमी सहमी सी लगती। न जाने वो इतनी डरी हुई क्यों रहती थी। तभी वो कारी पढ़ाने के लिए आया, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी ही अजीब थी, सुर्ख सुर्ख सी। लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ अजीबो गरीब हरकत की तो मैंने पूरे मदरसे में एक हंगामा कर दिया। पुलिस आकर उसे गिरफ्तार करके ले गई क्योंकि मैंने सबको सच सच बता दिया था। वो बच्चों के साथ गलत हरकतें करता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसकी मिट्टी पलीत हो गई थी। पूरे इलाके में वो बदनाम हो चुका था। लोगों ने उसे धक्के देकर उस इलाके से बाहर निकाल लिया। वो अपनी बीवी को लेकर न जाने कहाँ चला गया था। लेकिन अब मैंने एक उस्तानी के पास पढ़ना शुरू किया, जो एक बहुत बड़े मौलवी की बेटी थी। वो बहुत नेक और मेहरबान थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। फिर जब मैं 15 बरस की हुई तो मैंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। उस दिन अम्मी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। उन्होंने अपने सिलाई के पैसे जमा किए थे और उन्हीं पैसों से मिठाई बांटी थी। मुझे सफेद रंग का लिबास पहनना बहुत पसंद था। हालांकि अम्मी मुझे मना भी करती कि हर वक्त सफेद लिबास ना पहन के रखा करो, लेकिन मुझे इस रंग से प्यार था। सफेद रंग मेरा पसंदीदा रंग था। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास कर लिया था और हिफ्ज भी कर लिया था, इसलिए मैं अम्मी का हाथ बटाना चाहती थी। फिर मैं इलाके के घर घर जाकर बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाने लगी। वो लोग मुझे अच्छा खासा मुआवजा भी देते थे और मेरी खूब इज्जत भी करते थे। एक दिन मैं सफेद चादर पहने घर की तरफ वापस आ रही थी, जब ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं हैरान थी कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मेरे इर्द गिर्द एक भी फूल नहीं है और मुझे खुशबू अपनी चारों तरफ फैलती हुई महसूस हो रही थी। फिर मैं ऐसे ही अजीबो गरीब एहसासात लिए घर आ गई। लेकिन उस रात एक अजीब वाकया पेश आया था, जब हमारे दरवाजे पे कोई आया और अम्मी से कहने लगा कि आपकी बेटी तिलावत करती है। अम्मी कहने लगी जी हाँ, तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तकरीब है, महफिल मिलाद की। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी वहाँ पर तिलावत करे, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। एक तरफ औरतों की महफिल होगी और दूसरी तरफ मर्दों की, लेकिन आपकी बेटी को औरतों वाली महफिल में जाकर तिलावत करनी होगी। अम्मी ने जब मुआवजा सुना तो हैरान रह गई। कहने लगी मेरी बेटी इतनी दूर कैसे जाएगी? तो वो आदमी कहने लगा ये आप हम पर छोड़ दें, कल 2 औरतें आएंगी और वो इसे अपने साथ ले जाएंगी। वो दोनों उसे वापस छोड़ भी जाएंगी, आप परेशान मत हो। अम्मी ने मुझसे पूछकर हाँ कर दी थी। मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार किसी महफिल में जा रही थी। फिर दूसरे दिन मैंने अपना पसंदीदा सफेद रंग का लिबास पहना, जिससे पहनकर अम्मी मेरी बहुत तारीफें कर रही थी। अम्मी कहती कि इस लिबास में मैं किसी हूर से कम नहीं लगती। मैं उनकी तारीफ पर शर्मा जाती। हर माँ को अपनी बेटी इतनी ही खूबसूरत लगती है, शायद तभी। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा 2 निकाब पोश औरतें दरवाजे पे खड़ी थीं। अम्मी उन्हें अंदर आने के लिए कह रही थी, लेकिन वो अंदर नहीं आई, बल्कि मुझे ही बाहर बुलाती रही। यूं मैं अम्मी को खुदा हाफिज कहकर उनके साथ चली गई। मैं देख रही थी कि वो पैदल ही पैदल बहुत दूर चलती जा रही थी। न जाने उनका घर कहाँ है, लेकिन मैं भी थकी नहीं थी। तिलावत कुरान पाक करने का जज्बा मेरे अंदर मौजूद था। फिर मैंने देखा कि एक खूबसूरत इमारत को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया है। रोशनियां वहाँ खूब जगमगा रही थी। मैं समझ गई कि यहीं पर महफिल मिलाद है, और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं वहाँ गई तो सब मुझ पर फूल बरसाने लगे, मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। मैं हैरान रह गई कि ये सब मेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे ही मैंने तिलावत कुरान पाक शुरू की तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझ पर गुलाब के फूलों की बरसात हो गई हो।
पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी थी। बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद ये अल्लाह ताला के कलाम पाक पढ़ने की ताकत थी जो लोगों के अंदर मेरी इतनी इज्जत बन गई थी। फिर वापसी के सफर में उन्होंने मुझे बेपनाह तोहफे तोहफ़ और अच्छे खासे मुआवजे से नवाजा। हालांकि मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसरार किया। फिर 2 औरतें मुझे घर वापस छोड़कर चली गईं। फिर उस महफिल में जाना था कि मुझ पर तो जैसे अल्लाह का खास करम हो गया। इलाके के बड़े बड़े लोग मुझे अपने घर महफिलों में बुलाने लगे। सबसे पहले मैं वहाँ तिलावत कुरान पाक करती और उसके बाद वहाँ पर मिलाद शुरू हो जाता। उस पूरे इलाके में मेरा एक नाम, एक पहचान बन गई थी। सब कहते कि नूर फातिमा बेहतरीन किरत पढ़ती है, वो एक बेहतरीन कारिया है, उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है। लेकिन अम्मी एक बार फिर उदास रहती कि जब से मामू को ये पता चला था कि नानी ने ये घर हमारे नाम कर दिया है, उन्होंने इस इलाके में रहते हुए भी हमसे हर नाता तोड़ लिया था। मामी तो मुझसे सख्त नफरत करती थी। वो आज तक मुझे इस बात की मुबारकबाद भी देने नहीं आई कि मैंने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है, और ना ही हमारा उनके घर आना जाना था। मामी की 2 बेटियां थीं, एक का नाम पलवशा और दूसरी का नाम फहमीदा था। वो दोनों कॉलेज में पढ़ती थी और सुना था कि उन्होंने कॉलेज में कई किस्म के लड़कों से दोस्ती कर रखी है। फिर एक दिन मैं एक बच्चे को पढ़ाकर वापस आ रही थी, जब बीच रास्ते में मैंने पलवशा को एक लड़की के कार में बैठे हुए देखा। वो दोनों बैठे हुए कोई नाजेबा हरकत कर रही थी। मैंने देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन घर आकर अम्मी से कहा कि अम्मी, मामू को शायद मालूम नहीं कि उनकी बेटियां उनकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हैं। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो सब बदनाम हो जाएंगे। अम्मी परेशानी से कहने लगी, हाँ बेटा, ऐसे तो भाई की इज्जत खराब हो जाएगी। लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। फिर अम्मी ने ये बात मामू से कह दी कि आप अपनी बेटियों पर नजर रखें। ये बात मामी ने सुन ली और अम्मी को इतना बदनाम किया कि धक्के देकर घर से निकाल दिया। मामू ने उन्हें मना भी नहीं किया। अम्मी रोती हुई मामू के घर से वापस आ गई थी। जब मैंने सुना कि मामी ने अम्मी को धक्के देकर घर से निकाल दिया तो मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं अपनी चादर लेकर बाहर निकली थी। मैं आज मामू को सारी हकीकत बताने वाली थी कि मैंने अपनी आंखों से पलवशा को एक लड़के के साथ गाड़ी में देखा था। अम्मी ने कोई झूठ बात नहीं की। अपनी माँ की बेइज्जती में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने तो मामू का भला ही चाहा था कि आने वाले खतरे से उन्हें पहले ही आगाह कर दिया। फिर मैं मामू के पास चली गई, जहाँ पर मामी और उसकी दोनों बेटियां भी मौजूद थीं। फिर मैं मामू से कहने लगी कि मामू, अम्मी ने कोई झूठ बात नहीं कही। मैंने खुद अपनी आंखों से पलवशा को एक लड़के की गाड़ी में बैठे हुए देखा और वो लड़का उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। इससे पहले कि इलाके में आपकी बदनामी हो, अम्मी ने तभी आपको पहले ही इससे खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? धक्के देकर उन्हें घर से निकाल दिया। वो अभी तक आंसू बहा रही हैं। पहले बेवकी का दुख उनकी आंखों से छलकता था। मैं रोते हुए उन्हें हकीकत से आगाह कर रही थी। मामू को मुझ पर बहुत तरस आया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो वो गरजदार लहजे में अपनी बेटियों से कहने लगे, आज के बाद अगर तुमने घर से बाहर कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामी कहने लगी, हाँ, तुम इस छटांग भर की लड़की की बातों में आकर मेरी बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन मामू ने मामी को भी चुप करवा दिया था और कहने लगे कि अगर तुमने बेटियों की सही तरबियत नहीं की तो इस पर पर्दा मत डालो। अगर मेरी कोई बदनामी हुई तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। तब से मामी और उनकी दोनों बेटियां मेरी दुश्मन बन गई थी। वो जहाँ से भी गुजरती मुझे जहर आलूद नजरों से देखती थी। न जाने क्यों मुझे उनकी नफरत भरी नजरों से बहुत खौफ महसूस होता था। जहाँ एक तरफ दिन ब दिन पूरे इलाके में मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा था, वहीं मामू की दोनों बेटियों पर पाबंदी लग गई थी। मामू अब उन पर सख्ती करने लगे थे। उनका कॉलेज जाना छूट गया था। लेकिन एक दिन मैंने देखा जब मामू घर पर मौजूद नहीं थे और मैं अपने घर की छत पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ पर परिंदे अपनी आजादी का एहसास लिए खूब ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तभी मेरी नजर अचानक मामू की छत पर पड़ी, जहाँ पर पलवशा खड़ी थी। उसने अपने बाल शानों पर फैला रखे थे, जबकि वो नंगे सर बाहर गली की तरफ झांक कर देख रही थी। मैं जरा सी छुपकर उससे देखने लगी कि वो क्या कर रही है, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने नीचे गली में एक मोटरसाइकिल सवार लड़के को देखा
वो उसे इशारे कर रही थी। तभी लड़के ने एक चीज फेंकी और जिसे पलवशा पलक झपकते में ही अपने हाथों में दबोच लेती है। दोनों के अजीबोगरीब इशारे हुए और फिर वो लड़का तेजी से वहाँ से भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ था। माँ बाप को धोखा देकर अभी तक वो उस लड़के से राब्ते में थी। मैं एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर के बच्चों को पढ़ाने उनके बड़े से बंगले में जाती थी, जो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ से वापसी में एक दिन मुझे बहुत देर हो गई, तो मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए घर की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही दो लड़कों ने मुझे घेर लिया। वो अजीबोगरीब से लोग थे, लंबे लंबे कद और उनके हुलिये भी अजीब थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो इंसानों में से ना हो। तभी उन्होंने मुझे कहा कि तुम ही वो लड़की हो जो तिलावत कुरान पाक करती है। मैंने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगे, हम तुम्हारे घर भी गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम घर में मौजूद नहीं हो। चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें उस महफिल में लेकर जाना है जहाँ पर आज बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं घबरा गई कि न जाने ये मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि उस रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा होता था और मुझे घर पहुँचने की जल्दी थी, जबकि मैंने अम्मा से इजाजत भी नहीं ली थी। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अगर मैंने उनको इनकार किया तो ये नाराज हो जाएंगे, कहीं मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी न कर बैठे। यही सोचकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और उनके साथ चली गई। बहुत दूर जंगल के आखिरी कोने में वो घर था, जो बहुत ही खूबसूरत था। घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और वहाँ से जोर जोर से कलाम पाक पढ़ने की आवाजें आ रही थी कि जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो सबने मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे और भरपूर तरीके से किया। अब मैं बैठकर तिलावत कुरान पाक कर रही थी, जब अचानक ही मुझ पर गुलाब के फूलों की बरसात हो गई। तभी एक आदमी उठ खड़ा हुआ और सबसे कहने लगा, माशाल्लाह, इस लड़की की आवाज में किस कदर सहर है। कुरान पाक की इस कदर ताकत हमने आज तक महसूस नहीं की। उसने तो हमें जीने का सही ढंग सिखा दिया है। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे और तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए थे, क्योंकि वो बूढ़ा शख्स बहुत ही दिल से मुझे दुआएं दे रहा था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर जब महफिल खत्म हो गई तो मैं घर की तरफ आने लगी। रास्ते में मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये एक खौफनाक रास्ता था और मैं घबरा रही थी कि अम्मा कितनी परेशान होगी, क्योंकि रात के 12-1 बजे का टाइम हो रहा था। फिर जब मैं घर गई तो अम्मा परेशान सूरत लिए बैठी थी। मैं घर गई तो अम्मा नाराज हो गई, कहने लगी, ऐसे थोड़े ही करते हैं, बगैर बताए ही घर से निकल जाते हैं और आधी आधी रात को घर वापस आते हैं। कहाँ तुम अपने मामू की बेटियों को कहती थी कि वो ऐसी लड़कियां हैं, और अब तुम भी उनकी तरह हरकतें करने लगी हो। मैंने उनके हाथ थाम लिए और कहने लगी, अम्मा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपको धोखा दूंगी या मैं किसी लड़के से कोई चक्कर चलाकर उसके साथ अय्याशियां करती फिरूंगी। अम्मा, आज तो मैं बहुत बड़ी महफिल में गई थी। आप यकीन करें, वो महफिल इतनी बड़ी थी, जैसे ही मैंने कुरान पाक की तिलावत की तो सब लोग मुझे तारीफ से नवाजने लगे और कहने लगे कि इस लड़की की आवाज में कुरान पाक सुनकर तो हमारी रूह ताज़ा हो जाती है। मेरी बात सुनकर अम्मा का गुस्सा कदरे कम हो गया था। फिर हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाया। लेकिन एक दिन मैं पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली नजमा के घर गई तो उसने एक ऐसा राज मुझे बताया जिसे सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। वो कहने लगी कि तुम अनकरीब तुम्हारी कजन पलवशा एक लड़के के साथ भागने वाली है, क्योंकि ये मुझे पक्की खबर मिली है। वो तुम्हारे मामू की इज्जत को मिट्टी में रोड़ने वाली है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कुछ ऐसा करेगी कि जिससे मामू की पूरे इलाके में बदनामी हो जाएगी और साथ में मेरी भी, जो मेरा इस इलाके में एक नाम था, पहचान थी। अब मामू को बताए बिना कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि मामू कहीं उसके साथ कोई बुरा सलूक न करे, और मुझे ये भी डर था कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे पलवशा को नुकसान हो। लेकिन अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो मामू का भरोसा टूट जाएगा। मैं चाहते हुए भी उन्हें कोई दुख देना नहीं चाहती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दोनों बहन भाइयों के दिल मिले थे। अब मामू कभी कभार अम्मा का हाल चाल पूछने आ जाते थे और अम्मा इसी बात पर खुश हो जाती थी। जैसे ही अगले दिन मामू अम्मा से मिलने आए तो मैं बच्चों को पढ़ाकर वापस आ रही थी। अम्मा किचन में चाय बनाने चली गई थी। तभी मैं घबराते हुए मामू से कहने लगी, मामू, मुझे आपसे एक बात करनी है। खुदा के लिए आप पलवशा को कुछ मत कहिएगा। क्या हुआ बेटा,
मुझे बताओ क्या बात है। वो भी परेशान से हो गए थे। फिर मैंने उन्हें बता दिया कि पलवशा अनकरीब उस आवारा लड़के के साथ अपने घर से फरार होने वाली है। ये सुनना था कि मामू गजबनाक हो गई। वो कहने लगे उसकी ऐसी हिम्मत कि वो कुछ ऐसा करने का सोचे, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मामू खुदा के लिए ऐसा कुछ भी मत करना, वो नादान है जब ये ऐसी हरकतें कर रही है, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। आप बस उस पर नजर रखें और एक बार उसे अच्छी तरह समझा दें कि वो ऐसी हरकतें करना छोड़ दे। मामू आपकी भी इज्जत का सवाल है और मेरी भी। सब कहेंगे कि वैसे तो बड़ी इज्जत वाले बनते हैं, लेकिन देखो बेटी इज्जत कदमों में रौंद कर चली गई। मामू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा तुम तो बहुत ही समझदार हो, मुझे तुम पर फख्र है। ये कहकर वो घर से चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी दोनों बेटियों पर सख्ती शुरू कर दी थी। मैं खुश थी कि अच्छा हुआ मामू का खानदान बदनामी से बच गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि खुद मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। उस दिन एक बच्ची आई और कहने लगी, पलवशा और फहमीदा बाजी आपको बुला रही हैं। मैं खुश हो गई कि दोनों बहनें मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, इसलिए शायद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। जैसे ही मैं उनके घर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना मामू थे और ना ही मामी, लेकिन दोनों बहनें छत पर मौजूद थीं। तभी मैं नीचे सहन में खड़ी थी। अचानक पलवशा की आवाज आई और कहने लगी, ऊपर आ जाओ फातिमा, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, ठीक है मैं आती हूँ। मैं ऊपर चली आई थी। तभी फहमीदा ने एकदम से ही मुझे पीछे से दबोच लिया और धक्का देते हुए कहने लगी, तो तुम ही वो नागिन हो जो हमारी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हो। हम तो तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम हमें दुश्मनी करने पर मजबूर कर रही हो, और आज हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। कैसा बदला? मैंने खौफजदा लहजे में उनसे कहा, तो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अब वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आ रही थी, जबकि मैं खौफजदा से पीछे हो रही थी। वो दोनों बहनें मिलकर न जाने मेरे साथ क्या करने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई कि उन्होंने फर्श पर कोई चिकनी चीज डाल रखी है, जिस पर मेरी चप्पल बुरी तरह फिसल गई और मैं एकदम से ही नीचे गिरी कि छोटी दीवार से होती हुई नीचे गली में जाकर गिरी। दोनों बहनें फौरन ही नीचे भाग गई थी और मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी, क्योंकि मेरे दिमाग पर गहरी चोट लगी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। अम्मा को रो रो कर बुरा हाल था। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं सकती थी और ना ही किसी को बता सकती थी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। वो मेरी दोनों कज़नें जो मेरी दुश्मन बन चुकी थी, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं कुव्वते गोयाई से महरूम हो गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग पर गहरी चोट लगी थी। मेरी आवाज जो मेरी पहचान थी वो हमेशा के लिए चली गई और मैं एक मासूर लड़की बनकर रह गई। 3 महीने तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही। ऐसे में अम्मा ने भी मुझे संभाला था। घर में गुर्बत का डेरा हो चुका था, क्योंकि मेरे इलाज पर सारी जमा पूंजी लग गई थी। अब हमारे घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। अम्मा बेचारी खुद किसी घर में काम काज करती, बार बार मुझे देखने के लिए आती, जबकि मैं बिस्तर की मरीज बन गई थी। आखिर उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों में आंसू थे। अब मैं अम्मा से अपने दिल की कोई बात भी नहीं कर सकती थी, बस हर वक्त आंखों में आंसू लिए रोती रहती। लेकिन एक दिन एक अजीब बात हुई थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, वो 2 आदमी थे जो मेरा नाम लेकर अम्मा से कह रहे थे, वो लड़की कहाँ है जो बेहतरीन आवाज में कुरान पाक पढ़ती है? हम उसे लेने आए हैं। आज हमारी बहुत बड़ी महफिल है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उनसे कहने लगे, मेरी बेटी की आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। वो एक गूंगी लड़की बन गई है। उसके इस हुनर को उससे छीन लिया गया जो उसका शौक था, जो उसकी ताकत थी। अब वो कभी भी नहीं बोल सकती। वो दोनों आदमी हैरान रह गए, कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप हमें उससे मुलाकात करवा सकती हैं? अम्मा ने उन्हें अंदर बुला लिया था। मैं एकदम से ही उठकर बैठी थी। मुझे उन्हें देखकर खौफ महसूस हुआ था। मैं इन्हें पहचानती थी। ये वही थे जो एक दिन जंगल के रास्ते से मुझे मिले थे और जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। एक आदमी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारी जो ये बीमारी है ये आरसी है, हमेशा रहने वाली नहीं। इसने तो जैसे मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। मैं हैरत भरी नजरों से उसे देख रही थी।
तभी वो अम्मा से कहने लगे, आपकी बेटी का इलाज हो जाएगा, ये तो हमारे लिए एक हीरे के बराबर है, क्योंकि इसकी तिलावत सुनकर जो हमारा बड़ा सरदार है उससे बहुत खुशी मिलती है, और आज उसी ने इसे बुलाने के लिए हमें यहाँ भेजा है। आज इसकी आवाज नहीं है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं आज से ठीक 7 दिन बाद इससे अपनी आवाज वापस मिल जाएगी और पहले की तरह ये कुरान पाक की तिलावत करने लगेगी। वो दोनों तो अम्मा को और मुझे यकीन दिलाकर चले गए थे। अम्मा के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा नामुमकिन है, अब मैं कभी भी बात नहीं कर सकूंगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उस हादसे ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। उन दोनों बहनों ने मुझसे बदला लिया था, लेकिन मैं तो उन्हें कुछ भी कह नहीं सकी थी। फिर मैंने सुना था कि पलवशा घर से भाग गई थी। उसने मामू की इज्जत मिट्टी में रौंद दी थी। मैंने जो करना था वो कर लिया था। मैंने तो उससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। सही कहते हैं लोग, आजकल के दौर में किसी की भलाई के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए, वरना लोग उसकी आवाज का गला घोंट देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तभी एक दिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बूढ़ा दरवेश दरवाजे पे खड़ा था। मैं एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि मैं बुरी तरह डर गई थी कि आधी रात को दरवाजे पर कौन आया है। अम्मा भी सहम गई, लेकिन उस बूढ़े दरवेश को देखकर अम्मा हैरान रह गई। वो अम्मा से कहने लगा, मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करने आया हूँ, किसी ने मुझे खास तौर पर यहाँ भेजा है, मैं एक तबीब हूँ। अम्मा हैरान रह गई थी। तभी वो बूढ़ा दरवेश कहने लगा, तुम बहुत खुशनसीब हो, दोनों माँ बेटी, क्योंकि तुम पर उनकी नजरे करम खास हो गई है, जो बहुत अच्छे और नेक हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? अम्मा हैरान होकर उससे पूछ रही थी। वो बूढ़ा दरवेश पुरस्कार लहजे में कहने लगा, वही जो यहाँ आती थी उस लड़की को लेने के लिए, क्योंकि वो इस लड़की से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। कुरान पाक पढ़ने की वजह से वो बहुत नेक जिन्नात हैं, अल्लाह की पहुंची हुई मखलूक। वो हर रोज महफिल रखते हैं, मिलाद की, कुरान पाक की, और ये सब करके उन्हें खुशी महसूस होती है। क्या तुम नहीं जानती थी कि यहाँ आने वाले वो दोनों जिनसात थे जो इंसानी रूप लेकर इस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते? ये सुनकर अम्मा और मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। फिर अम्मा कहने लगी, वो कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे ना बाबा? ये सुनकर वो बूढ़ा दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तुम्हें फायदा पहुँचाएंगे। वो तुम्हारी बेटी की मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर अम्मा और मैं बहुत खुश हो गए थे। फिर बूढ़े दरवेश ने मुझे दवा दी। वो अजीब व गरीब कड़वी सी दवा थी। कहने लगे, 14 दिन के इलाज से मुझे यकीन है तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी, और अगर वापस नहीं आई तो तुम्हें जिन्नात की दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक खास शुआएं होती हैं। एक झील किनारे एक ऐसी शुआ उतरती है जिसकी वजह से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई थी। मैं भी खौफजदा हो गई थी, लेकिन जो भी वो बूढ़ा दरवेश मुझे दवाइयाँ दे रहा था उससे मैं पाबंदी से खा रही थी। कोई नहीं जानता था कि रात की तारीकी में एक बूढ़ा दरवेश मेरा इलाज करने आता है। अम्मा कहने लगी, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। न जाने कितने हसद करने वाले लोग हैं जो तुम्हें नजर लगा सकते हैं। अब न तुम्हें किसी के घर जाती थी और न ही कोई मेरे पास आता था। मामू कई दफा मेरी तबीयत पूछने आते थे। उन्हें इस हादसे से बहुत अफसोस हुआ था। फिर वो अम्मा से कहने लगे कि तुमने मेरी इज्जत बचा ली। लोगों का कहना है कि ये मेरे घर से गिरी है, कहीं मेरी बीवी ने इसे धक्का तो नहीं दिया, या फिर मेरी बेटियों ने, लेकिन तुमने ये सबके सामने मेरी इज्जत रख ली। लोगों से ये कहा कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, वरना लोग तो बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं। मामू के लहजे में अफसोस था। अम्मा कहने लगी, ये सब मेरी बेटी के नसीब में लिखा था, लेकिन मुझे यकीन है रब इसको इससे भी ज्यादा बेहतरीन अता करेगा। अम्मा हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती रहती। मैं भी अभी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती और मेरे लब जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल ही दिल में कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। लोगों की नजरों में मैं एक मासूर गूंगी लड़की बन चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं अभी भी ठीक हूँ। हाँ, बहुत से लोगों से बेहतर हूँ। मैंने हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था, कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया कि आज उसने मेरे ऐसे हालात पैदा कर दिए। अम्मा कभी कभी दुख से कहती कि न जाने अब तेरी शादी होगी भी या नहीं, कोई तुझे ब्याहने आएगा। मैं अपने दिल में आंसू बहाती थी, सोचती
कि अम्मा से कैसे कहूँ कि ऐसी बातें ना किया करो, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मैं जानती थी कि वो एक माँ है, वो अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान है। फिर 14 दिन गुजर गए। मेरे इलाज को मेरे गले में हल्की हल्की सी तकलीफ हो रही थी। तभी वो बूढ़ा दरवेश कहने लगा, आज तुम्हारे लिए खास पैगाम लेकर आया हूँ। शहंशाह जिन्नात ने तुम्हें अपने पास बुलाया है और उनका कहना है कि तुम्हारा इलाज वहीं पर होगा जहाँ पर वो नेक जिन्नात अपना इलाज करवाती हैं। चलो उसी झील किनारे जहाँ पर चांद की पड़ने वाली तेज रोशनी की शुआएं इस कदर ताकतवर होती हैं, जिसमें जिन्नात की ताकत भी शामिल हो जाती है। मुझे यकीन है आज रात तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। ये सुनकर तो अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। उसने दरवेश बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे लगेगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। मेरी बेटी की आवाज वापस आ जाएगी, जो किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। अब मैं दरवेश बाबा के साथ जा रही थी। गो कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं ये कोई बहरूपिया ना हो, लेकिन मैंने बस खुदा पर भरोसा कर लिया था, इसीलिए बेफिक्र होकर उसके साथ जा रही थी। फिर दूर एक जंगल में मौजूद जिन्नात की बस्ती में मैं पहुंच गई। मैंने देखा सब मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर फूलों की बरसात कर दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं कि अब ये लड़की बेजुबान हो चुकी है, पहले की तरह अपने कलामे पाक से उनके दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकती। मैं सर झुकाए खड़ी थी। तभी एक लंबा चौड़ा शख्स चलता हुआ आया। मैं समझ गई कि यही वो शहंशाह जिन्नात है जिसने खसूसी तौर पर मेरा इलाज करने के लिए कहा है। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, जब से तुम पहली बार इस बस्ती में आई थी तब से ही हम सब ने तुम्हें अपना मान लिया था और हम अपनों को किसी भी हालात हो अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए हम तुम्हारा इलाज करवाना चाहते हैं। वो दोनों जिन साथियां तुम्हें उसी झील किनारे ले जाएंगी जहां पर हमारे सारे जिन्नात की ताकत में इजाफा होता है और ऐसे लगता है कि उस ताकत से तुम्हारी आवाज भी वापस लौट आएगी। मैंने सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि मैं बोल तो नहीं सकती थी। फिर वो दोनों जिन साथियां मुझे अपने साथ ले गईं। मैंने देखा वो झील बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत मंजर नहीं देखा था। मैं दिलचस्पी से उसे देख रही थी, लेकिन अचानक ही वहां से सफेद रोशनियां फूटने लगी। तभी दोनों जिन साथियां मुझसे कहने लगी, जल्दी से वहां चली जाओ, देखो ये सिर्फ चंद लम्हे के लिए नमूदार होती है, इसके बाद गायब हो जाती है और तुम्हें इसी बात से फायदा उठाना है। वो तेजी से मुझे उसी तरफ लेकर जा रही थी जहाँ पर चांद की रोशनी आ रही थी। मैं भी वहाँ पहुँच गई और खड़ी हो गई। मैंने देखा मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जबकि मुझे अपने हलक में चुभन सी महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो रोशनी गायब होती महसूस हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मैं काफी हद तक मायूस हो गई थी। फिर जिन साथियां कहने लगी, अब बोलने की कोशिश करो, क्या तुम बोल सकती हो? सबसे पहले उस खुदा का नाम लेना जिसने तुम्हें तख्लीक किया है। सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर अल्लाह का नाम लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जैसे ही मैंने अल्लाह पुकारा, अचानक ही मुझे अपने कानों में अपनी आवाज सुनाई देने लगी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। मैं आंसू भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों खुशी से चिल्लाती हुई कहने लगी, मुबारक हो, ये तो मौजज़ा हो गया, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। आज से पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा। चलो आओ, शहंशाह जिन्नात के पास तुम्हें लेकर चलते हैं। अब सारे जिन्नात खुशी मना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। वो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। फिर शहंशाह जिन्नात कहने लगा, चलो अब वो कलामे पाक की बरकत हमें सुना दो, ताकि हमारे दिल को भी सुकून पहुंचे। अब मैं पूरे दिल से अल्लाह का नाम लेकर उसका कलाम पढ़ रही थी। खुद मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज से पहले कभी मैंने इतनी शिद्दत से कुरान पाक की तिलावत नहीं की थी, लेकिन आज इतने सालों बाद अपनी आवाज ही अजनबी लग रही थी। लेकिन उसकी तासीर ही ऐसी थी कि वहाँ बैठे सारे जिन्नात झूम रहे थे और इस कलाम से बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। फिर शहंशाह जिन्नात मुझे कहने लगा, जब भी हम तुम्हारे अपने पास बुलाएं तो तुमने कभी इनकार नहीं करना। लोगों के सामने हम इंसान हैं, लेकिन तुम सिर्फ हमारी हकीकत से वाकिफ हो। हम तुम्हें भी कभी ये हकीकत नहीं बताते, लेकिन चूंकि तुम हमारे पास ऐसे नहीं आती, इसीलिए हमें ये बात बतानी पड़ी। अब तुम अपनी माँ के पास जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रही है।
मैंने उनका पूरे दिल से शुक्रिया अदा किया था और उनसे कहने लगी, आज के बाद वो जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगी। भले मैं कहीं भी मौजूद हूँ, मैं यहाँ जरूर आऊंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे। फिर वही बूढ़ा दरवेश मुझे घर छोड़ने चला आया। अभी मैं अपने दरवाजे पर पहुंची ही थी जब उसने मुझे आवाज दी और कहने लगा, बेटी एक और राज सुनती जाओ। मैं भी एक जिनजात हूँ और उस कबीले का तबीब, एक जिन्नात जो तुम्हारे घर में रोजाना आता था। मैंने तुम्हें जब इसलिए अपनी सच्चाई नहीं बताई कि कहीं तुम मुझसे डर न जाओ, क्योंकि अक्सर लोग हमसे घबरा जाते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जब मैं घर वापस आई, अम्मा कहने लगी, क्या तुम ठीक हो गई हो? उनकी आंखों में खौफ था। जब मैंने पहली बार अपनी जुबान से अपनी माँ का नाम लिया तो उन्होंने खुशी से मुझे अपने सीने से लगा लिया था। कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बेटी की आवाज वापस आ गई है। ये तो एक मौजज़ा ही हो गया। मैं भी बहुत खुश हो रही थी। फिर जब अम्मा से पूछा, क्या सच में ही तुम्हें पलवशा और फहमीदा ने धक्का दिया था? वो बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गई और कहने लगी, अम्मा उन्होंने मुझसे बदला लिया था, उसी बात का जो मैंने मामू को उनके बारे में बता दिया था। अम्मा कहने लगी, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, तुम्हारा इंसाफ अल्लाह करेगा। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि नूर फातिमा, जो कि एक हाफिज़े कुरान लड़की है, उसकी आवाज चली गई थी। लेकिन आज न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसकी आवाज वापस आ गई है और वो फिर से बोलने लगी है। सारे गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए थे और एक एक करके उन्होंने हमारे घर में आने जाने की लाइन लगा दी। सब लोग मुझे देखने आ रहे थे। सारी औरतें अम्मा को मुबारकबाद दे रही थी कि तेरी बेटी की आवाज वापस आ गई। अब इससे पूछो कि इसका मुजरिम कौन है, ताकि पता चले कि उसे छत से किसने धक्का दिया था और ये तुम्हारे भाई के घर से गिरी थी। अब अम्मा सब कुछ समझ गई थी, लेकिन अम्मा ने फैसला खुदा के ऊपर छोड़ दिया था। अम्मा ने ये राज भी किसी को नहीं बताया कि मेरा इलाज करवाने वाले कौन थे। वो तो इस दुनिया के थे ही नहीं, वो दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की थी, मेरा इतना ख्याल किया था जो शायद मेरे अपने भी ना करते। अब मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। फिर से मैंने अपने काम का आगाज कर दिया, लेकिन मैं हैरान थी जब इलाके के एक इमाम मस्जिद ने कहा कि ये लड़की हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम एक अपने इलाके में मदरसा बनवाएंगे जिसकी सरपरस्त ये होगी। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, बेशक ये उसी के फैसले होते हैं। लाख पलवशा और फहमीदा की कोशिशों के बावजूद खुदा ने मुझे इस इज्जत से नवाज दिया था। मैं उन सब का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर गांव वालों ने एक बहुत बड़ा मदरसा तामीर करवाया जिसकी सरपरस्त मैं थी। मैं उसकी निगरानी में वहां आने वाले बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज कराने में मदद देती थी। लेकिन एक दिन जब मैं अपने घर पर थी तो अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीबोगरीब शख्स खड़ा था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई और उस आदमी से कहने लगी कि वो कौन है। तभी वो आदमी भारी आवाज में कहने लगा, मुझे शहंशाह जिन्नात ने भेजा है, मैं उसका खास बंदा हूँ और ये सारे बच्चे भी जिन्नात के बच्चे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि इन बच्चों को आपसे ही कुरान पाक की तालीम दिलवाएं ताकि ये आगे चलकर हमारा नाम रोशन करें। क्या आप इन्हें ये तालीम दे सकती हैं? मुझे याद आया उन्होंने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया था। उन्होंने मेरी हर तरह से मदद की थी। मैं फौरन ही राजी हो गई, ये जानकर भी कि वो जिन्नात के बच्चे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि वो बच्चे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हर रात को मैं सबकी नजरों से छुपकर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी मदरसे में जाती थी और फिर 1 साल की कोशिशों के बाद सारे बच्चों ने कुरान पाक पढ़ लिया था। फिर शहंशाह जिन्नात ने मुझे कहा कि आज तुमने हमारे एहसान का हक अदा कर दिया। तुम एक तारीफ के लायक लड़की हो, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराती थी। फिर एक दिन उस इलाके में रहने वाले एक अमीर तरीन शख्स के घर से मेरा रिश्ता आया तो अम्मा बहुत खुश हो गई थी। अम्मा कहने लगी, मैं तो हमेशा सोचती थी कि तुझे किसी शहजादी की तरह इस घर से रुखसत करूं। मैं कहने लगी, अम्मा जैसे आपकी मर्जी, अगर आपको ये रिश्ता मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी मंगनी चौधरी के बेटे से हो गई थी जो खुद भी बहुत पढ़ा लिखा और एक दीनदार नौजवान था और मुझे ऐसे ही किसी इंसान से शादी करनी थी।
लेकिन दूसरी तरफ मामू की दोनों बेटियां उजड़ कर आ गई थीं, क्योंकि उनकी बदजुबानी और बदसलीका पूरे गांव में मशहूर था। मामी जो हमेशा अम्मा से चपकलिश और हसद रखती आई थीं, उनका सारा ध्यान ऐसी ही बातों पर होता था कि कौन किसके घर आ रहा है, कौन किसके घर जा रहा है, किसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटियों पर तवज्जो नहीं दी थी, जबकि सारे गांव वाले अम्मा की तारीफें करते और कहते कि उसकी एक ही बेटी थी जिसे उसने हीरे की तरह तराशा, और आज वो अपनी रोशनी से सारे इलाके के बच्चों को मुनव्विर कर रही है। ये बच्ची तो तारीफ के लायक है। 2 साल बाद मेरी शादी हो गई और आज मैं अपने घर में राज कर रही थी। लेकिन कभी कभार अपने शौहर से छुपकर मैं जिन्नात की महफिल में भी जाती हूँ, क्योंकि शहंशाह जिन्नात से मेरा एक खास मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता कायम हो गया था। वो मेरी इज्जत करते थे और मैं उनकी किसी बात को नहीं टाल सकती थी। कोई नहीं जानता कि वो आज भी मुझसे मुलाकात करने मेरे पास आते हैं, और मैं उन्हें एक नजर में ही पहचान लेती हूँ, क्योंकि ये ताकत मेरे अंदर मौजूद है। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन आगे भी मेरा इरादा है कि मैं अपने दोनों बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज करवाऊंगी और उन्हें भी अपनी ही तरह एक कारी कारिया, क्योंकि मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। दूसरी तरफ पलवशा की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत मसले मसाइल थे और वो दीन के नाम से ना आशना थी, क्योंकि उसके अंदर सब्र और तहसीब नाम की कोई चीज नहीं थी। यही वजह थी कि वो अपने ससुराल में गुजारा कर ही नहीं पाई थी। लेकिन आज मामू और मोमानी से मैं कभी कभार मिलने जाती हूँ तो मामी कहती हैं कि मैं गलत थी और तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक। काश मैं कभी अपने दिल में तुम दोनों माँ बेटी से इतनी नफरत ना पालती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहती कि आज हालात खराब हैं, लेकिन कभी न कभी आप भी और आपकी बेटियां भी एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। फिर मैं मामू की दुआएं लेती अपने घर आ गई थी, जहां पर मेरा शौहर और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।